ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਸਮਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि जो लाजर मर गया, जो लाजर सो गया, मेन गल आप करिए कि मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदा भी ना मरता। तो मार्था कहती है यीशु मसीह नूं, हे प्रभु अगर तू इत्थे हुंदा तो मेरा भरा कदी भी ना मरदा, क्योंकि मैं जानदी है कि जो कुछ तू परमेश्वर कोलों मंगदा है परमेश्वर तैनूं दे दिंदा है। जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था इस गल नूं कह रही है। देखो उन्होंने कितना विश्वास है, उन्होंने कितनी वड्डी इस गल की भी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ परमेश्वर कोलों मंगेगा परमेश्वर उन्होंने दे देगा। तो जे तू मेरे कोल हुंदा इत्थे
ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਮਾਰਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਰਥ, ਇਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ हे पिता, तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सुन लई, तू मेरी अर्ज, मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना सुन लई। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हे पिता, जे अपनी मैं जुबान चो भी गल ना कहता तो तद भी तू मेरी सुनदा है, तू मेरी सारी प्रार्थनावां, मेरी सारी बेनती तू सुनदा है। पर मैं अपनी जुबान चो इस करके बोल रहा हाँ कि जो आले दुआले लोग खड़े ने ये जान लैण, इन्हां नूं पता लग जावे कि वो तेरे उत्ते विश्वास करन ते वो मेरे उत्ते विश्वास करन कि तू मैनू भेजिया है। दोस्तों, सब तो वड्डी गल इत्थे यही है कि यीशु मसीह जद भी प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, और उसकी प्रार्थना सुनने के नाल मुर्दा भी जिंदा होता है। और उसकी प्रार्थना क्यों सुनी जाती है, असीं हुण इस गल उत्ते गौर करिए। असीं पढ़ते हैं मती 3:17 दे विच की लिखिया होया है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तो बहुत प्रसन्न हाँ। परमेश्वर इस गल की गवाही दे रहा है। मती 17:5 में लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रभु फिर कह रहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये तो मैं बहुत प्रसन्न हाँ, और यदी गल नूं सुनो। मरकुस 1:11 में फिर लिखा होया है, ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। लूका 3:22 भी लिखा होया है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। देखो कितनी वड्डी गल है कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह नूं कह रहा कि मैं तेरे तो प्रसन्न हाँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, और इस दी सुनो, मेरे पुत्र दी सुनो, क्योंकि मैं तो प्रसन्न हाँ, मैं तो खुश हाँ। और पिता परमेश्वर जिहदे कोलों खुश है, जिहदे कोलों प्रसन्न है, पिता परमेश्वर उहदी प्रार्थना नूं हमेशा ही सुनदा है। परमेश्वर जे तो बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर उहदी सुनदा है प्रार्थना। तो जदों परमेश्वर जिहड़ा परमेश्वर का चुनिया होया व्यक्ति है, परमेश्वर का चुनिया होया जन है, जदों वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर प्रार्थना नूं सुनदा है, और सुनने तो बाद जिस विषय उत्ते प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उस विषय नूं पूरा करता है, चाहे वो विषय परमेश्वर के कानून के उलट ही क्यों ना होए। चाहे किसी नूं मरिया नूं जिंदा करना ये परमेश्वर के कानून के उलट है, पर परमेश्वर करता है। 3 साल 3.5 साल मीह ना पैना ये परमेश्वर के कानून के खिलाफ है, पर परमेश्वर उन्होंने करता है। क्योंकि जो अपने चुने हुए नबियां दी रसूलों की प्रार्थनावां नूं सुनता है तो बीमार भी चंगे होंदे हैं, तो मुर्दा भी जिंदा होंदे हैं। तो की अज यही सवाल पैदा होता है कि अज परमेश्वर साडे तो प्रसन्न है या नहीं। सवाल तो अज यही पैदा होता है कि परमेश्वर साडे तो प्रसन्न है, साडे तो खुश है। तो जे असीं अज कहीए कि परमेश्वर साडे तो खुश है, प्रसन्न है, असीं धर्मी जन है, तो फिर साडी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? फिर क्यों बीमार चंगे नहीं होंदे पे? फिर क्यों मरकुस दे 16 अध्याय के 17-18 वचन साडे जीवन च पूरे क्यों नहीं होंदे? क्योंकि उहदी एक वड्डी वजह है साडे अंदर। हुण मेन गल मैं करन लग जा रहा है
कि ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। और प्रभु क्यों कह रहे, पिता क्यों कह रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरे तो प्रसन्न हाँ, क्योंकि इत्थे जो सब तो वड्डी पावर काम करदी है वो है प्रेम दी। सब तो वड्डी सामर्थ, सब तो वड्डी पावर वो है प्रेम दी, वो है प्यार दी, और जो साडे विच है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀही, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ, त्याग है, अपने आप ਨੂੰ त्याग करना, अपने आप का बलिदान करना, यही प्रेम की परिभाषा है। और पुत्र ने बलिदान किया अपने आप ਨੂੰ पिता की इच्छा ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। यूहन्ना 14:15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ लिखी हुई है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से बेनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। इसी तरीके नाल प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर के हर एक हुक्म, हर एक आज्ञा मन्निया, और पिता खुद गवाही दे रहा कि मैं अपने पुत्र तो प्रसन्न हाँ, इसकी सुनो। और वही पुत्र लाजर के समय दे विच बेनती करता है, हे पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सुन लई है। और मार्था इसे गल नूं कह रही है कि अगर तू उत्थे हुंदा तो मेरा भरा कदी ना मरदा, क्योंकि मैं जानदी हां कि जो कुछ तू परमेश्वर कोलों मंगेगा वो तैनूं मिल जाएगा। ते कि अज असी जो कुछ परमेश्वर कोलों मंगदे हां अपने लिए नहीं, दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ, कि परमेश्वर साडी सुणदा। ਉਹੀ एक विश्वासी है, पवित्र आत्मा नाल भरिया होया ਉਹੀ एक विश्वासी है, जो विश्वासी परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर इनू चंगा कर, इनू बीमार नू चंगा कर, वो चंगा हो जाएगा। उस वक्त ही मरकुस दे वो चिन्ह साडे अंदर प्रगट होणगे। अगर वो अज नहीं हो रहे ना चिन्ह साडे अंदर प्रगट, तो इस गल का सबूत है कि साडे प्यार दे विच बहुत वड्डी कमी है। असी सोचते हैं कि साडे जीवन च बहुत बड़ी ब्लैसिंग है, और असी सवेरे शाम हर वेले धन्नवाद करते हैं, डर विच रहिंदे हैं, ते इस तरीके नाल असी अपने प्यार नूं प्रगट करते हैं। पर इस गल नूं याद रखियो कि जिहड़ी प्यार की परिभाषा वो बहुत वड्डी है, बहुत दूर है, असी उसनूं समझे ही नहीं, ना असी समझ सकते हैं उसनूं। और इस गल का वर्णन पौलुस बहुत सोहना कर रहा है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय दे विच, प्रेम सब तो उत्तम मार्ग है। इस गल नूं याद रखियो कि इत्थे बहुत सोहना लिखिया होया संत पौलुस ने कि चाहे तुसीं स्वर्गदूतां दी बोलियां बोल लो, चाहे मैं भविष्यवाणी करा, चाहे वड्डे वड्डे महान काम क्यों ना करा, पहाड़ां नूं भी हटा देवां मैं, चाहे संपूर्ण संपत्ति मैं कंगालां नूं वंड देवां, चाहे अपनी देह नूं भी जला देवां, जे मैं प्रेम ना रखां तां कोई लाभ नहीं मेरे अंदर। चाहे अज मैं जो कुछ मर्जी कर लवां, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सब कुछ चले जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देह भी खत्म हो जानी है, और देह नूं मिले हुए वरदान भी खत्म हो जाने हैं, कुछ ओवर हो जाना, पर प्रेम हमेशा रहना, क्योंकि उसे प्रेम दे करके असी मुड़ के जिंदा होना, और उसी प्रेम दे करके असी स्वर्ग जाना, और उसी प्रेम दे करके असी पिता परमेश्वर नाल तख्त ते बैठना। और सब तो वड्डी पावर सामर्थ प्रेम ही है। और मैनूं बड़ा दुख है इस गल का कि वह प्रेम ना मेरे अंदर है तो ना ही मैनूं दूजिआं अंदर किते नज़र आ रहा है, क्योंकि असी हंकार नाल भरे हुए व्यक्ति असी अज भी अपने अंदर हंकार और ईर्खा लैके बैठे हुए हैं, और अपने आप दे विच अपनी जीविका का घमंड, अपनी बाइबल की नॉलेज का घमंड, अपने प्रचार का घमंड, अपने रहन सहन का घमंड, असी घमंड नाल भरे घमंडी लोग हैं। और जिथे घमंड है
परमेश्वर ने अपने वचन 'ਚ लिखिया होया कि परमेश्वर चढ़िया हुई अखां भाव की हंकार नाल भरिया हुई अखां परमेश्वर ਨੂੰ जमे पसंद नहीं है और असी हंकार नाल भरे हुए हैं। इस करके साडे अंदर प्रेम की कमी है। बेशक असी कहिए कि असी प्यार नाल भरे हुए हैं, असी बड़ी हलीमी नाल बोलते हैं, बड़े प्यार नाल बोलते हैं, किसी नाल गुस्सा नहीं करते आपां, साडी जुबान चों मिठे बोल निकलते हैं, असी गरीबां दी मदद करते हैं, हैल्प करते हैं, आपां सब कुछ करते हैं। पर ये कसौटी नहीं है, ये मापदंड नहीं है इस गल नूं जानण दे लई कि असीं प्यार नाल भरे हुए हैं। सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा प्यार नाल भरिया होया परमेश्वर उहनूं ही कहेगा कि ये मेरा पुत्तर है, इसदी सुणो। और जदों प्यार नाल भरिया होया पुत्तर भाव यीशु मसीह ਜਾਂ फिर साडे वर्गे पापी प्यार नाल भरे होए जिन्हों परमेश्वर कहेगा कि मेरे तो प्रसन्न हाँ, जो असीं दुआवां करांगे प्रार्थना करांगे तो वड्डे वड्डे काम भी होणगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुसीं मेरे ते विश्वास करोगे, मेरी आग्ञा नूं मनोगे तो मेरे तो भी वड्डे वड्डे काम करोगे। और यीशु मसीह ने वड्डा काम किस तरीके नाल कीता कि वह पिता परमेश्वर के प्रेम दे विच बनिया रहा और उसने संसार दियां उह सारी गल्लां दा, संसार दी सारियां अभिलाषावां दा त्याग किया और बलिदान किया प्रभु ने। और जिवें उसने किया उसी तरीके नाल उहदे चुने हुए चेलियां ने किया तो वह भी उसी पावर दे नाल, उसी वरदान दे नाल भरे हुए। तो सब तो वड्डी पावर, सब तो वड्डा समर्थ प्रेम ही है और साडे अंदर प्रेम की कमी है और इसी करके असीं परमेश्वर दे उस महान कमां नूं नहीं कर पा रहे। क्योंकि अज असीं समझ लैंदे हैं या तो ये मरकुस के चिन्ह साडे लई है ही नहीं है, ਜਾਂ तो असीं सोच लैंदे हैं कि इन्हां चिन्हां नूं प्रगट करन दे नाल असीं कोई धंधा करना है तो कोई बिजनेस करना है, ਜਾਂ असीं वड्डे वड्डे पास्टर बनना, वड्डे वड्डे दास बनना हैगा, पखंडी बनना हैगा और असीं लोकां नूं कलीसियां नूं असीं चंगियाई दे नाम ते लुटना हैगा। असीं इसी भुलेखे 'च बैठे रहंदे हैं। पर यह कोई भी मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ एक मात्र बड़ा सीधा बड़ा साफ मकसद है कि परमेश्वर दे लई असीं अपने आप नूं तैयार करिए जिवें यीशु मसीह ने अपने आप नूं तैयार किया। सब तो वड्डी गल यह है कि यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई शुरू की। 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन्होंने उपर उतरिया और 3.5 साल सेवकाई की। सब तो वड्डी गल है कि उन्होंने 30 साल अपने आप नूं संभाल के रखा। 30 साल की उम्र एक बहुत ज़्यादा उम्र है। बचपन तो लैके अपनी जवानी के समय दे विच भी 17-18 साल तो 20-25 साल की उम्र तक भी उसने अपने आप नूं निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र रखा। कि आसान है 30 साल अपने आप नूं निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र रखना। 30 साल की पवित्रता तो बाद जो उन्होंने बपतिस्मा लिया तब जाके परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, मैं तो प्रसन्न हाँ। अजे तो ना कोई उन्होंने चिन्ह किए, ना कोई चमत्कार किए उन्हें, ना ही किसी मुर्दिया को जलाया तो ना ही किसी लंगड़िया कोड़िया को ठीक किया उन्हें। वो तो पहला ही बपतिस्मे वाले समय उसने गल कही कि मेरा प्रिय पुत्र है। इन्हें 30 साल अपने आप को संभाल के रखा है। 30 साल इसने कोई पाप नहीं किया, इन्हें कोई निंदा नहीं की, कोई चुगली नहीं की, कोई घमंड नहीं किया, कोई हंकार नहीं किया। पता नहीं इन्हें दुनिया तो पाप तो किस तरीके नाल अपने आप को बचा के रखा। तद परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तो प्रसन्न हाँ। और इसलिए सुनो, क्योंकि 30 साल उन्हें भगती की अपने आप को पवित्र रखने के लिए। ते असीं मसीह च आउण तो बाद भी हंकार नाल भरे हुए हैं। जो साढ़े भरावां दा कलेश चलता ना, परिवार च कलेश चलता, वो इस गल का सबूत है कि असीं हंकार नाल भरे हैं। हंकार नाल असीं भरे हुए हैं। आकाशवाणी होंदी है, बदलों चो आकाशवाणी होंदी है, मेरा प्रिय पुत्र। असीं प्रिय हो चुके हैं, असीं प्यार नाल भर चुके हैं कि असीं अपने आप को जांचीए, परखीए। पौलुस कहता अपने विश्वास को परखो, परखो अपने विश्वास को। किवें परखना? मैं तो हमेशा ही परखदा कि मैनूं पता कि मेरे अंदर प्यार की कमी है, इस करके वो चिन्ह साडे अंदर प्रगट नहीं हो रहे हैं, वो चिन्ह साडे अंदर नज़र नहीं आ रहे। इसलिए वो बयाने का आत्मा साडे कोल है ही नहीं। वो पवित्र आत्मा जो एक बयाना है, एक साई है, जो समर्थ और वरदाना नाल भरी हुई एक आत्मा है, वो आत्मा साडे कोल नहीं है। क्योंकि अज भी पाप साडे अंदर घूम रहा है। अगर 2-4 कोई काम साडे कोल हो जाते हैं, 2-4 कोई चिन्ह चमत्कार साडे कोल हो जाते हैं, जिवें मेरे कोल भी होए सीगे, पर असीं मन लैंदे जी असीं पवित्र आत्मा नाल भरे होए हैं जी, परमेश्वर ने साडे द्वारा कुछ काम कर दिते हैं। वो काम तां होए सीगे कि परमेश्वर ने अपनी गवाही दित्ती सीगी।
कि ये काम कंटिन्यू रहन तो मेरे वचन को फॉलो करो, मेरे विश्वास से खड़े रहो, मेरे नाल प्रेम दे विच खड़े रहो। इसलिए बाणी च लिखा हुआ है कि जो कोई संसार का है, जो कि संसार का मित्र होना चाहता है, जो कि संसार के लिए यीशु मसीह में आया हुआ है, संसार दियां ही गल्लां करदा और संसार की आशीषां लई ही परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि परमेश्वर साडे जीवन च बहुत ब्लैसिंग है। ये गल याद रखियो, संसार नाल मित्रता, परमेश्वर नाल वैर करना है। और जिन्हें परमेश्वर नाल वैर किया, परमेश्वर किवें कह देगा उन्होंने कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरे को प्रसन्न है, तो किवें फिर काम करेगा परमेश्वर जीवन दे विच? किवें कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए काम करेगा वो, जबकि उसके अंदर प्यार की इन्नी कमी है कि वो चिन्ह उसके अंदर प्रगट नहीं हो रहे। इत्थे सानूं सोचना पेगा। इसलिए यीशु मसीह ने जदों जिंदा किया लाजर नूं, उत्थे गल फिर गौर करियो इस गल की कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा कि तू मेरी सुनी है। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। और मार्था कहती कि मैं जानती हाँ कि परमेश्वर तेरी सुनदा, तेरी प्रार्थना नूं सुनदा, और जो तू परमेश्वर को मंगेगा परमेश्वर तेनों देंदा। तो अज की साडी प्रार्थना परमेश्वर सुनदा? क्योंकि प्रभु ने वादा किया होया कि तुसीं मेरे तो भी वड्डे काम करोगे। प्रभु ने वादा किया होया कि जिहड़ा चेला गुरु के बराबर हो सकता, गुरु तो उच्चा तो नहीं हो सकता, गुरु के बराबर हो सकता। प्रभु ने लिखी हुई है गल अपनी बाणी दे विच कि साडे अंदर वो चिन्ह नज़र आ रहे हैं कि खाली असी बाइबल का ज्ञान रख के, बाइबल दी आयतां याद करके कि असी जी बाइबल स्टडी की हुई है, मैं 5 साल 10 साल बाइबल का अध्ययन किया होया, मैनू सारा कुछ याद है, तो अज मैं बाइबल बंद करके भी पूरा प्रचार कर सकदा, किहड़ी आयत कित्थे लिखी हुई है मैनू सब पता है मैनू, और असी किसी के नाल भी वाद विवाद कर सकते हैं। बाइबल का रट्टा ला के उधार नहीं होना। 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, और जिन्हें गंढ नूं फड़ लिया, जिन्हें गठ नूं फड़ लिया, रस्सा कभी छुट नहीं सकता। और जिहड़ी गठ है ना प्रेम है, और असी उस प्रेम तो दूर हैं। पहली तो मैं अपनी गल करदा, फिर मैं उन्होंने गल करदा जिन्होंने मैं जानदा। प्रेम नहीं है साडे विच। असी खाली प्रार्थनावां करते हैं, असी फोकियां प्रार्थनावां करते हैं, खाली प्रार्थनावां फोकियां प्रार्थनावां सुनिया ही नहीं जांदियां, कोई काम ही नहीं हुंदा, कोई चंगा ही नहीं हुंदा। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि असी सारे संसार को चंगा कर देना, सारे हस्पताल खाली कर देने आपां, नहीं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को जो वरदान मिले है पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर वो प्यार ना भरे हुए है, वो वरदान कलीसिया के लिए है, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए है, कलीसिया के लिए उन्नति का कारण ने वरदान, और असी वो वरदान कलीसिया के विच ही इस्तेमाल करने ने, ताकि कि परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया एक मत, एक विश्वास नाल एक मन हो सके, एक देह हो सके, एक दुल्हन बन सके। और जदों दूल्हा आवे तो अपनी दुल्हन नूं पाप कलीसिया नूं लैके जावे। इसलिए असीं इस गल उत्ते मनन करिए कि अगर मरकुस ने गल लिखी हुई है, वो क्यों लिखी हुई है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अगर वो गल लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है? उसका कोई मकसद तो होएगा, उसका कोई अर्थ तो होएगा ना कि विश्वासियों के चिन्ह होणगे, वो विश्वासियों के चिन्ह। और जो असीं प्यार नाल भरे तो विश्वासियों वाले चिन्ह साडे अंदर प्रगट होंदे हैं। असीं इस गल हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह ने एक मनुख बन के इस धरती उत्ते अपने 33.5 साल गुजारे ने, और जिन्हें भी उन्हें चिन्ह और चमत्कार किए ने, उन्हें पिता परमेश्वर को बेनती की है, प्रार्थना की है, और परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना उत्ते अपनी मोहर लाई है और हर एक को काम किया। और इसलिए होया कि जो कोई उत्ते विश्वास करेगा, जो कोई ਉਹਦੇ उत्ते विश्वास करेगा और प्रेम दे विच भरिया होएगा, उस तरीके नाल परमेश्वर ਉਹਦੀ भी प्रार्थना सुनेगा और वो काम करेगा जिस विषय पर प्रार्थना की गई है। क्योंकि इस धरती उत्ते जिन्ने भी नबी पैगंबर और रसूल आए ने, वो सारिਆਂ ने ही पिता परमेश्वर के कोल ही प्रार्थना की है, वो प्रार्थना सुनी गई है। इसलिए बाणी विच लिखा होया है कि परमेश्वर कहता कि मैं पापियां दी नहीं सुनदा, मैं पापियां दी
नहीं सुनता। और अज भी साडी प्रार्थनावां अगर नहीं सुनिया जा रही कि जो असीं किसी दे लई बीमारी दे लई असीं प्रार्थना करते हैं, साडी प्रार्थना कोई उत्तर नहीं आता, नहीं सुनी जाती है, तो इस गल नूं सोचना बहुत जरूरी है कि किते साडे प्यार च कमी तो नहीं, साडे प्रेम दे विच कमी तो नहीं। क्योंकि प्रभु ने लिखा होया कि धर्मी जन चाहे 7 वार भी डिग जाए मैं तद भी उसनूं खड़ा करांगा। गल याद रखियो, परमेश्वर ने अपने धर्मी जन नूं कहा होया। धर्मी जन का की मतलब है? जो कि उहदे धर्म के राज की खोज करता है, जो उहदी आग्या उत्ते चलदा, उहदे दसे हुए मार्ग उत्ते चलदा, जिन्हें संसार तो अपना खैड़ा छुड़ा के संसार दी अभिलाषां का त्याग करके परमेश्वर के उस तंग रस्ते उत्ते चलदा पिया, तंग मार्ग उत्ते चलदा पिया। वो धर्मी जन चाहे वो राह उत्ते चलदे चलदे 7 वार भी डिग जाए परमेश्वर नूं तद भी खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर चंगी तरह जानता कि धर्मी जन है, ये मेरे राह उत्ते चलदा है, मेरी दसी हुई शिक्षा के उत्ते चलदा है, इन्हें अपना सारा कुछ त्याग और बलिदान करके मेरे वलों आउंदा है, तो चाहे डिग भी जाए, क्योंकि शैतान उसे राह उत्ते कंडे खिलार के बैठा होया है जिस राह के उत्ते असीं चलना। इसलिए शैतान चलना पारी कर दिंदा, साडे राह ते कंडे खिलारदा है, और असीं चुने हुए भी अगर डिगते हैं तो परमेश्वर साडे नाल वादा करता कि तू 7 बार भी डिगेगा मैं तद भी तेनों खड़ा करांगा, क्योंकि तू मेरे प्रेम च बनिया होया है। और धन्यवाद परमेश्वर का कि मैं भी डिगया और परमेश्वर ने मैनूं मुड़ के फिर खड़ा किया और अपने वचन के ज्ञान के नाल फिर भरिया परमेश्वर ने मैनूं। आओ असीं परखीए, इस नूं परखण की बहुत लोड़ है कि असीं उस प्यार नाल भरे हुए हैं, और जिहड़ा परमेश्वर के उस प्यार के नाल भरिया होया है, याद रखियो इस गल नूं, वो संसार का कभी हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ परमेश्वर का ही है। और तद ही परमेश्वर और तो खुश होएगा, प्रसन्न होएगा, जिवें यीशु मसीह तो प्रसन्न होया। इसलिए प्रभु ने पतरस नूं पूछा 3 बारी कि तू मेरे नाल प्रेम करदा है, कि तू मेरे नाल प्रीति करदा है, कि तू मेरे नाल प्यार करदा है। गल प्यार दी पुछी सी, पर पतरस ने आखिर में की कहा, प्रभु तू तो जानदा ही है कि मैं तेरे नाल प्रेम किन्ना क करदा नहीं करदा, किन्ना क प्रेम है मैनूं अपने मूहों कहण दी लोड़ नहीं है, तू जानदा चंगी तरह। अज फिर परमेश्वर सानूं पुछदा कि तू प्यार करदा मेरे नाल, तू मेरे नाल प्रेम करदा, तू मेरे नाल प्रेम करदा, दस मैनूं। ये उही प्यार है, उसे प्यार की समर्थ है, जिन्ने वरदान ने उस प्रेम के वरदान ने सारे। जो असीं उस प्रेम दे विच भर जाते हैं, परमेश्वर साडे तो प्रसन्न हुंदा है, पवित्र आत्मा का वरदान सानूं मिलता है जिहदी प्रतिज्ञा की गई है, और उस वरदान नाल भरे हुए असीं फिर काम करते हैं, परमेश्वर दे लई काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते, अपने घर परिवार के लिए, कार के लिए, गड्डियां के लिए, बच्चों के लिए, लोगों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रचार नहीं करते आपां, असीं परमेश्वर की कलीसिया नूं सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। फिर पर असी अज हजे आप ही सिद्ध नहीं है, असी आप ही प्रेम नाल भरे नहीं हुए, आप ही असी आत्मा नाल भरे नहीं हुए, तो असी किसी नूं की सिखाउणा, तो किसी नूं की सिद्ध करना अपना। परमेश्वर इस बाणी नूं समझो, लाजर किवें जिंदा होया, जिवें यीशु मसीह ने लाजर नूं जिंदा कीता, उही पावर अगर साडे कोल है ना प्रार्थना करन दी, उही पावर अगर साडे कोल है, तो इस गल की गवाही है, इस गल का चिन्ह है कि असीं चुने हुए हैं और परमेश्वर साडे तो प्रसन्न है। और जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर नूं प्रसन्न करता है, परमेश्वर नूं खुश करता है, वही स्वर्ग जाएगा। इसलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा होया है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यूहन्ना 4:24 में गल लिखी हुई है, परमेश्वर आत्मा है, वो इसलिए चाहिए कि जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भगती, परमेश्वर नूं प्रेम आत्मा और सच्चाई दे नाल करदे ने, जो सच्चाई दे नाल उहदे मार्ग उत्ते चलदे ने, परमेश्वर यही व्यक्तियों नूं, यही लोगों नूं लभदा है और उन्हां ते प्रसन्न हुंदा है। सब तो वड्डी अगर एग्जाम्पल देवां, मैं स्तिफनुस की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि स्तिफनुस नूं किस तरह चुनिया गया, और जो चुनिया गया क्योंकि वो सच्चाई विश्वास नाल और आत्मा नाल भरिया होया सी, जदों चुनिया गया और जदों उन्हें परमेश्वर लई काम कीता ते अद्भुत काम भी उन्हें कीते, बाणी च लिखिया होया। असीं पढ़ सकते प्रेरितां दे काम अध्याय 6:8 दे विच, स्तिफनुस अनुग्रह और समाज से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखो, ये अद्भुत काम करना, चिन्ह दिखाना, मैं फिर कह रहा, ये कोई साडा धंधा नहीं है, साडा बिजनेस नहीं है, असीं इन्हां पैसे नहीं कमाने, कलीसिया इकट्ठी करके असीं इन्हां को दशमांश नहीं खाना, चर्चा नहीं बनाउणी है, पर एक कलीसिया दे लई है,
ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉन्नति ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੀਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੰਤ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।